कुछ लम्हों की लापरवाही में ज़िंदगी भर का रोना हो गया। कुछ लम्हों की लापरवाही में ज़िंदगी भर का रोना हो गया। सोचते रहे वो बंगाल का चुनाव और वही पार्टी को कोरोना हो गया। सो इट्स मी, आई विल गिव माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू यू पीपल. My name is Vivek Kumar Sanjog and I am from Gazipur, Uttar Pradesh. So actually I am too much happy because today Avinash sir had given me the opportunity to stand over you. Actually I am also the SSC aspirant like you people. So today I will tell about how to prepare about SSC subject, means I am talking about English, because many of the students were facing in the English subject. So it's they thought that English is very difficult for them, because क्योंकि उनका यूपी बोर्ड बैकग्राउंड होता है, मतलब हिंदी माध्यम का बैकग्राउंड होता है. सो इफ दे विल थिंक दैट इट्स इंग्लिश पेपर, हाउ शुड आई कोप अप, हाउ शुड आई सॉल्व, it's a massive problem they are facing here. So today I am going to just tell you how to solve the English paper very easily. Not solve, first you should have to be confident that I can just cope up that English subject. So actually last time in 2019 CGL time, because of English I scored a good marks, but my quant is not good, so that's why I didn't get select in that SSC. So this is the right time opportunity to just get select in SSC. I put my all the efforts. I am like you people only. I am also the SSC aspirant. Don't think that I am a teacher. So today we will discuss about that English topic and how to just cope up English, because before that हम भी आप लोग की तरह ही सोचते थे कि यार इंग्लिश कैसे होगा, मतलब बहुत सारे मीन्स इट्स टोटली स्ट्रेस अबाउट दैट इंग्लिश. द वर्ड मीनिंग आर वेरी टफ, आई डोंट नो, क्योंकि क्लास 6-7 तक हमने भी हिंदी माध्यम से पढ़ा है और हमने मतलब कि इंग्लिश से आई डोंट हैव एनी फैमिली बैकग्राउंड रिगार्डिंग विथ इंग्लिश. So today I will just come over you, because Avinash told many students were facing in the English subject. So today just we will discuss how to just overcome about English. So let's come about our English competitive. So just I will take the syllabus, what are the things we need to study in the English competitive subject. So firstly I will write here. So in English competitive syllabus there are two portions. First one is vocab portion, and second one is grammar portion. Students usually face the problem in vocab, because if I will talk about the English subject, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा कोई रूट वर्ड होता है तो वो वोकैब होता है. इफ़ यू नो द वोकैब यू कैन ईजिली स्कोर अ गुड मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट. And the main thing is that while speaking in English, vocab also plays a main role in that. So in vocab, first one is one word substitution. Second one is idiom phrases. Third one is antonym, synonym. And fourth one is spelling error. Spelling error, I think you people can't see that spelling error where I had written, so just I will rub it, and I will write it here, spelling error. Because all the portions will come in the vocab portion, because if you know the spelling of any word you can easily rectify the problem in the spelling error. So the mainly thing is that we need to focus on all these things, because if you know the root word of any words, then definitely we can easily just conclude our English subject.
So today I'll talk about how you can just overcome it and how you can cope up about these topics. And grammar portion, many students they thought that if I know the rules of active, passive, direct, indirect, then I can just conclude that problem. It's not like that. For the grammar portion, you need to do one thing. I will tell you the exact. So now I'll talk about the grammar portion. What are the topics we need to just cover in the grammar portion? And that is, first one is spotting the error. Spotting the error. Second one, everything will come in the grammar portion only, like voice and narration. Third one is tense, noun, pronoun. All these topics I think so. I don't want to discuss, and you people know, so that's why I am not telling about all these topics. So now I need to tell you that. So my question is that what should be the good approach for English? For English competitive. The main thing is that हमें यहाँ पे कोई PhD नहीं करनी है इंग्लिश में. We need to just clarify the exam. That is the main thing. Because if you thought that we need to English very much, it's not like that. क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे इंग्लिश एक ऐसा it's not a subject, it's language. ये एक भाषा है. जैसे कि भाषा में क्या है कि किसी ने हमको हिंदी बोलना नहीं सिखाया था कि हिंदी ऐसे बोलते हैं, चलो वहाँ करते हैं. चाहे भोजपुरी बोलना कि नहीं, चलो वहाँ चलो खाए चलो जाओ, ऐसे कोई सिखाया नहीं, ना कोई हमने पढ़ाया है. लेकिन हमने हमारी सराउंडिंग ऐसी है कि हमने सुनते सुनते धीरे धीरे जस्ट वी केम अक्रॉस दैट. हम उसके लगभग आ गए, हम लोग बोलने लगे, उस तरीके में हम लोग ढल गए. सेम लाइक इंग्लिश ऑल्सो. बिकॉज अगर आप सोच ले कि इंग्लिश में ये करना है, वैसे इंग्लिश बहुत टफ लैंग्वेज है, इट्स नॉट लाइक दैट. टफ नहीं है. अगर आप मान लीजिए टफ है, अगर मान लीजिए टफ नहीं है तो क्योंकि वही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. So I will tell you one thing, and the main thing is that what should be the good approach for the English competitive. So the first thing I will just tell you, do to people whatever you want to do in your life. जो भी आपने ज़िंदगी में करना चाहे, be confident. If you are confident in your life, you can do anything. अगर झूठ भी बोल रहे हैं आप तो 100% झूठ बोलें. कॉन्फिडेंटली झूठ बोले, एकदम नज़र मिला के बोले कि नहीं हम झूठ बोल रहे हैं आपसे, और सामने वाले को फील नहीं होना चाहिए आप झूठ बोलें. दैट इज़ द मेन थिंग. मीन्स अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, यू शुड बी द वेरी मच कॉन्फिडेंट. आप अपने काम के प्रति एकदम कॉन्फिडेंस रखें. नहीं, आई कैन डू इट वेरी इजीली. लाइक क ख ग हमने पढ़ा, उस समय पढ़ा, आज भी हमें याद है. लाइक इंग्लिश, हमको वैसे इंग्लिश सीखना है अपने लाइफ में, ताकि कंपटीशन के बाद भी अपने बाल बच्चों को भी इंग्लिश हम सिखा सके, ताकि वो हमें बेवकूफ़ ना बनाए. दे डोंट मेक मी फूल दैट टीचर हैड गिवन दिस होमवर्क लाइक दैट. नहीं, ऐसे नहीं. ऐसे सीखना है कि ताकि कंपटीशन भी निकले अपना, एंड वे ऑफ स्पीकिंग वो भी अपना सही रहे. So I will tell you what will be the good. Here we will see what should be the good approach for English competitive. तो हमने आपसे बोला है कि मतलब हमें PhD नहीं करनी है, कि नहीं इंग्लिश में हम लेके पूरा SP बख्शी और MB पब्लिकेशन लेके. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी बुक, डोंट थिंक अबाउट दैट. कोई मतलब ये नहीं कि लेके पूरा पढ़ें, क्योंकि हमको वो चीज़ नहीं ठीक लगता है कि दिन भर आप ये रटंतु विद्या करें कि ये पढ़ें, क्योंकि ये दिमाग इंसान का है. इसको ये नहीं कि दिन भर रटने में लगाए. बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ. मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर जो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव हमको सीखना है, तो पहला हम एक ही चीज़ आपको बोलेंगे, माय ओपिनियन. सबका अपना अपना ओपिनियन होता है लाइफ में, जिसको जो फॉलो करना है करे. लेकिन मीन्स कहने का मतलब ये है कि अप्रोच हमारा क्लियर होना चाहिए. कि जैसे कि कोई अगर सेंटेंस आया तो उस सेंटेंस में ये ना रहे कि हमें क्या करना है. पहले आप एक चीज़ सेंटेंस को देख के आप डरिए नहीं. मीन्स डोंट फियर अबाउट द सेंटेंस. whatever it came in your front of the in the laptop or in the system. So self confidence पहली चीज़, आप भरोसा रखिए कि नहीं जो भी आएगा इंग्लिश हम कर लेंगे. क्योंकि हम आपसे बोले कि जो भी काम कीजिए वो कॉन्फिडेंटली रहे कि नहीं हम ये कर सकते हैं. क्योंकि बिना आप कॉन्फिडेंस के यू कैन डू एनीथिंग, चाहे वेदर इट इज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो. क्योंकि खेती बाड़ी में भी आप करने जाएँ सोचें कि
फौड़वा चल जाए कि ना चले, इफ़ यू थॉट लाइक दैट, नो, उल्टा पैर में चोट लाए घरे चली हुआ. सो फॉर जोक्स अबाउट आई टोल्ड यू. So I will tell you what will be the approach for that competitive English. So coming to the topic, I will tell you for the grammar portion first. For the grammar portion. For the grammar portion. So I will come to the for the grammar portion. What we need to do is हमें करना क्या है कि कोई एक मॉडल प्रैक्टिस सेट लेते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर कुछ भी उठाते हैं. प्रीवियस ईयर उठाए तो मतलब कि अब ये दिमाग में रहे कि प्रीवियस ईयर है, तो मीन्स डोंट थिंक लाइक दैट आई विल नॉट स्कोर इन दैट वन. फर्स्ट बी कॉन्फिडेंस. फर्स्ट वन आई एम टेलिंग यू फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज if you are having the confidence that I will solve the previous year questions, then definitely you can just conclude in that one. So before solving previous year, first you analyze the paper. Analysis. First you analyze the paper, means what are the portions they are actually asking in the grammar portion. Like in grammar portion, if you will come for the spot the error, I will talk about the spot the error first. First one is, my topic is wait, I will just remove it, then I will just discuss. First one, spot the error. For spotting the error in the previous year, you do one thing. I will not tell you just mug up the all the rules, jitne rule hai sab ratta maro. I am not tell you like that, because how many rules you will remember? Because so there are, I think if I remember, there are 400 to 500 rules are there in the grammar portion in English. So how much you will remember and how much you will just do it. So my suggestion will be there for spotting the error. Take the previous year questions, like if I'll take any question, I will just take the example here, and that is either Jadoo or his friends is to be blamed for this mischief, and last portion is no error, means first one A, in the A portion it seems to be like either Jadoo or his friends is to be blamed for this mischief, and fourth portion is no error. So if I'll see the example, अगर हम एग्ज़ाम में बैठे अगर ये मतलब क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि गलती कहाँ हो सकता है, क्योंकि हम लोग का क्या नेचर होता है कि हम लोग गलत ढूंढने में, अगर सही भी रहेगा सेंटेंस देन वी विल थिंक दैट नहीं कुछ तो गलत होगा, तो हम लोग गलत, सही भी रहेगा तो जानबूझ के उसमें गलत निकालेंगे. तो इसमें देखते हैं कि गलत क्या हो सकता है, तो दिमाग में सबसे पहले कि अगर इधर आया है तो या तो यहाँ या तो यहाँ, यही गलत होगा, इससे तो कोई मतलब है नहीं. वी डोंट हैव मीनिंग अबाउट दिस सेंटेंस. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल पोर्सन, सो जादू, दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन. What is this? This is means exactly a noun. Okay, don't think that like magic. It's a name of a person. ये किसी का नाम है जादू. So I took because it's my favorite. So जादू I took it as a noun. So here I will take noun, and if we'll see again the example, either जादू or his friends is to be blamed for this mischief. Mischief means होता है शैतानी हरकतें. If you people don't know, so that's why I'm writing. Otherwise I can't. मीन्स शैतानी हरकतें, जैसे बच्चे लोग करते हैं घर में शैतानी हरकतें. सो ब्लेम मीन्स इल्ज़ाम लगाना होता है. सो आई विल नॉट राइट ऑल दिस बिकॉज यू पीपल नो, यू पीपल आर वेरी मच स्मार्ट इन कंपेरिजन टू मी. आई एम नॉट मच स्मार्टर देन यू पीपल. सो हियर इफ आई विल सी वेयर इज़ टू बी द एरर, सो आई विल सी द, हमेशा इधर के साथ जो अगर नाउन रहे तो हमेशा इज की जगह हमेशा क्या होगा, आर होगा, क्योंकि यहाँ पे इधर है. इधर और के साथ जो सब्जेक्ट जुड़ा रहता है उसमें हमेशा आता है क्या, आर आता है, इज नहीं आता है. दैट इज द मेन एरर. सो हियर द एरर इज आर. ये गलत है, इज मेरा क्या है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज द राइट आंसर, ए आर. सो अगर एग्जाम में हम इसलिए एग्जाम्पल ये उठाए हैं क्योंकि एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मान लीजिए हमें पता था कि इधर के साथ आर आता है, तो आज ये कंसेप्ट हम सीखे. कहने का मेरा मुद्दा ये है,
द मेन मोटो ऑफ द ऑल दिस सेंटेंस इज मीन्स, कहने का मतलब ये है कि अगर इस टाइप का सेंटेंस कोई भी आता है, मीन्स if any questions came in the examination for spotting the error, the main thing we need to do is that first we should analyze what is the exact meaning. अगर हमको पता ही नहीं रहे कि mischief का मतलब क्या होता है, blamed का मतलब क्या होता है, then we can't just rectify that sentence. So अगर जो हमसे कोई देसी भाषा में पूछे कि स्पॉटिंग द एरर के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू फॉर फाइंडिंग द स्पॉटिंग द एरर, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए और उसमें जो भी आप लगाइए, गलत सही, वट एवर इट केम इन योर माइंड, फर्स्ट सॉल्व द प्रैक्टिस सेटर, बिकॉज आफ्टर सॉल्विंग अगर आप फिर एनालाइज करोगे कि हमने ये गलत किया, जिससे कि मान लीजिए अगर हम आपकी जगह रहते, आपकी जगह क्या हम आपकी तरह ही हैं, सो आई विल नॉट टेक आर, हम इसको बोलते कि नहीं सही है, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग देसी आदमी हैं, हम लोग सोचेंगे नाउन है, सिंगल आदमी की बात कर रहा है तो यहाँ पे ईजी होगा, आर तो हो ही नहीं सकता, हम लोग इस टाइप से सोचेंगे। लेकिन एग्जामिनर क्या है कि वो इस टाइप से सेटिंग ही बैठाता है कि हम लोग गलत करें, दैट इज़ द मेन थिंग। सो अगर हम अपना बोलना चाहेंगे आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाए, उसमें कोई भी एग्जाम्पल आप उसको सॉल्व करें, 3-4 एग्जाम्पल, और उसमें से जैसे कि मान लीजिए हमने एक कंसेप्ट सीखा कि इधर के साथ सब्जेक्ट लगा है नाउन, तो हमेशा उसके साथ आर आएगा, ये हमारा जिससे यहाँ पे आर आया, हमने ये आपको बताया, तो ये एक हमने आज कंसेप्ट सीखा। तो ऐसे ही मान लीजिए 3-4 आज क्वेश्चंस लगाए हम, तो 3-4 जो आज सीखी इसको रफ पेपर पे आई विल राइट इट ऑन नोटबुक, कोई भी एक नोटबुक ले, क्योंकि टीचर के हम नहीं बोल रहे कि आप इस टीचर को फॉलो करें, वो टीचर, क्योंकि टीचर लोग 10 तरीके की बात बताएंगे कि नाउन में ये होता है, प्रोनाउन में होता है, एंड वी कांट बस हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, देसी भाषा में सिर्फ एक चीज़, फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेम थिंग यू पीपल आर आल्सो फेसिंग। तो हम यही कहेंगे कोई भी आप एक मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर कोई भी आप उठाएं, उसमें जो स्पॉटिंग द एरर, जो ग्रामर पोर्शन है, आप उसको सॉल्व करें, गलत सही कुछ भी आ रहा है जो अंदाज पर मारिए, फिर एनालाइज कीजिए, फर्स्ट एनालाइज द क्वेश्चंस आप देखिए, और उसका जो रूल आपने गलत किया, क्योंकि आप जो गलत करेंगे उसको सही करेंगे दोबारा, तो लाइफ में यू कांट फॉरगेट इट, आप उसको कभी भूल नहीं सकते। टीचर का बताया हुआ बात आप भूल सकते, लेकिन अपनी गलती को सुधारा हुआ इंसान कभी नहीं भूलता, हमेशा याद रहता है। सो ये हमारा हो गया ग्रामर का पोर्शन की बात। अब आते हैं, नाउ विल टॉक टू वोकैब पोर्शन। So I will talk about vocab. So in vocab I will tell you 6 to 7 words, क्योंकि ये 6 जो भी हम याद करें, मान लीजिए 10 वर्ड अगर हम याद करते हैं तो 10 वर्ड ऐसा रहे कि ये हमें याद रहे, ये नहीं कि आज भूले कल, आज याद किए कल भूले, ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। सो आई विल कम टू द वोकैब पोर्शन। ये वोकैब पोर्शन में क्या क्या करना है आई विल टेल यू, क्योंकि अगर आप दिन भर का इनपुट अगर 10 वर्ड मीनिंग लगाए हैं, देन आउटपुट शुड बी कम, आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि आउटपुट नहीं आएगा देन इट्स वेस्ट। सो हम बताएंगे कि वोकैब याद करने का बेस्ट वे क्या होता है, क्योंकि बहुत कम लोग आई थिंक ऐसे लोग बताते हैं, जहाँ तक हमको ऐसा लगता है, बाकी आप लोग की इच्छा। सो वोकैब में जैसे कि मान लीजिए कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में क्योंकि एग्जामिनर भी क्वेश्चन वही सेट करता है जो करंट में भी चलता है, क्योंकि नाउ एसएससी सीजीएल हो चाहे कोई भी एस्पिरेंट हो, दे वांट द एक्सीलेंट पर्सन हु इज़ जस्ट ऑलराउंडर इन एवरी फील्ड। लाइक अगर कोरोना की बात चल रही है, कोरोना अभी सिचुएशन में चल रहा है, तो एग्जामिनर भी है जो क्वेश्चन उठाएगा वो कोरोना टॉपिक से ही उठाएगा। जैसे कि इंग्लिश की भी बात करें, करंट अफेयर की बात हटाइए, उसमें तो पूछता है, एज यू नो इंग्लिश की बात करें तो क्वारंटाइन दे देगा क्वेश्चन में कि स्पॉट द एरर, व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ क्वारंटाइन। तब क्वारंटाइन का स्पेलिंग अब सोचेगा आदमी कि क्या होगा, बट आई विल टेल यू द स्पेलिंग ऑफ क्वारंटाइन इज QUARANTINE, क्वारंटाइन, QUARANTINE, क्वारंटाइन। अब इसी में क्या देता है एग्जाम में कि क्वारंटाइन में TE यहाँ पे दे देता है, E दे देता है, कुछ और देता है, N की जगह U दे देता है, इस तरीके से देता है। स्पॉटिंग द एरर में इस टाइप का स्पेलिंग, तो इस टाइप का स्पेलिंग आप रेगुलर लाइफ में जैसे कि पेपर पढ़ते हैं, चाहे कहीं भी, वेर एवर जस्ट एनीवन इज गिविंग एनी पम्पलेट रिगार्डिंग कोरोना वायरस कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूर, इस टाइप से, तो वहाँ पे जरूर स्पेलिंग लिखा रहता होगा। देन आपको इंग्लिश सीखना है, देन स्पेलिंग शुड बी कम इन योर माइंड, देन यू कैन बी द गुड इन इंग्लिश। बिकॉज अगर बोले कि भाषा को सीखने के लिए हमें वहाँ के इन्वायरमेंट में घुलना मिलना पड़ेगा, और यू विल हैव टू मेक द इन्वायरमेंट इन योर माइंड ओनली। इफ़ यू विल थॉट दैट माई फादर विल कम एंड माई फादर विल टॉक टू मी इन इंग्लिश, इट्स नॉट पॉसिबल। आप सोचेंगे कि पापा आएंगे और पापा बोलेंगे यो, नो, इट्स नॉट लाइक दैट।
पापा आपसे इंग्लिश में बात नहीं करेंगे. You should have to make the environment in your own, because same thing I was facing where I was studying in Bangalore. So you will have to make the environment and you will have to just cope up. So now we'll talk about the vocab portion. Vocab portion, if I studied 7 to 8 words today, so in that 7 to 8 words, how to just remember in a regular life while speaking in English. आप उस 7 से 8 वर्ड को इंग्लिश स्पीकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन अ गुड अप्रोच वे. हम अपनी बात करें, दूसरे की हम भी ऐसे ही किए थे. मतलब कि जैसे कि इफ़ आई स्टडी टुडे 6 to इफ़ आई मग अप 6 to 7 वर्ड्स लाइक सो, अगर हम 6 से 7 वर्ड को हमको इस्तेमाल करना है तो उसको क्या करेंगे हम. जैसे कि पेंडेमिक का मतलब होता है स्प्रेड अक्रॉस द लार्ज रीजन, मतलब कोई बीमारी हो पूरे वर्ल्ड में वही हर जगह फैला हो, दैट इज कॉल्ड. ये सब वर्ड्स को हमको अपने लाइफ में अपने दिमाग में उतारना पड़ेगा और इनको याद रखने का तरीका, हाउ टू जस्ट रिमेंबर द वोकैब स्पेलिंग, हाउ टू रिमेंबर द वोकैब पोर्शन. So just I will talk about the vocab portion. Here are some words which I wrote on the whiteboard. That is novel. Novel means new or unusual. Like अगर हम किसी को फ़ोन करते हैं तो बोलता है ना कि ये नोवल कोरोना वायरस, तो you should know the meaning of the novel. What is that exactly? क्योंकि आप सुन रहे हैं और you don't know the meaning, then it's waste. Because if you listen any words in English practically in your life, you should have to go through it. Because if you go through it, because that's the word which exactly they are asking in the examination hall. They will not ask like Oxford Dictionary English. They will not ask. They will ask the questions from the currently whatever it's happening in our environment. So novel means new or unusual. Like coronavirus, we are not aware about the coronavirus. What is that? We just came to know about in 2019 in November. On that time we know that we heard that कोरोना ये चाइना में फैला हुआ है, ये शहर है वो शहर है. दैट टाइम वी टोक इट एट अ जोक. नाउ वी बिकेम जोक फॉर दैट पीपल. सो लिव इट. नोवेल, इट्स लाइक न्यू और अनयूजुअल. लाइक कोरोना वायरस, इट्स न्यू और अनयूजुअल फॉर वी. फर्स्ट वन इज कॉन्टाजियन जोन. कॉन्टाजियन मीन्स होता है कि जैसे कि कुछ जगह पे भारत सरकार ने लिखा था कि कॉन्टाजियन जोन बना है. तो कॉन्टाजियन का मतलब क्या होता है? द कम्युनिकेशन ऑफ डिजीज़. जो डिजीज़ कम्युनिकेशन के थ्रू फैलता है. जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बात करते करते कुछ भी छींक देते हैं, चाहे कुछ मतलब अनयूजुअल थिंग्स, अगर आप कम्युनिकेशन के थ्रू कोई डिजीज़ फैलता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टाजियन. सैनिटाइजर, हम लोग बोलते हैं कि जस्ट हाथ धोते रहो, ये करते रहो. देन व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सैनिटाइजर? सैनिटाइजर मीन्स डिसइंफेक्टेंट्स दैट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब कोई ऐसा लिक्विड जो कीटाणु बैक्टीरिया को मारे. हाथ तो धोना ही है, मान लीजिए मोदी साहब तो बोलते ही हैं. And now we came about acute. What is that acute? Acute is that quickly becomes severe. Like जिसको अभी के टाइम में कोरोना हो रहा है, जिससे कि like respiratory system. कोरोना just nowadays कोरोना becomes में जिसको हो रहा है उसका respiratory system it's totally damaged. पूरा ख़त्म कर दे रहा है. So that is acute. So मेरे कहने का मतलब कि अगर हमने 4 वर्ड आज याद किया सुबह से लेकर शाम तक, then how to remember all these 4 words that we can't forget in our life. तो ये 4 वर्ड को इस्तेमाल करने के हम बता रहे हैं कि याद कैसे रहे लाइफ टाइम के लिए. इट्स माई प्रैक्टिकल अप्रोच. इट्स नॉट वेरी टफ फॉर यू इफ़ यू विल जस्ट लर्न ऑल दिस 4 वर्ड्स एंड इफ विल अप्लाई दिस थिंग, देन ऑटोमेटिकली योर वोकैब पोर्शन एंड द वे ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश इट विल ऑटोमेटिकली विल बी गुड, नॉट गुड, इट विल बी द बेस्ट. आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी. क्योंकि अगर ये 4 वर्ड हमने सीखा तो क्या करेंगे? आई विल रिमेंबर ऑल दिस 4 वर्ड्स. अब ये 4 वर्ड याद करने के बाद क्या करेंगे? आई विल टेक वन रफ सीट एंड जैसे कि हमने बचपन में ऐसे लेटर राइटिंग लिखते थे, तो हमने ऐसे में लिख लेंगे कोरोना वायरस. कोरोना वायरस में क्या करेंगे? कोरोना वायरस. अब जो 4 वर्ड लिखे, इस 4 वर्ड से हम उसको ऐसे को मतलब लिखेंगे, ताकि ये 4 वर्ड का बार बार इस्तेमाल होगा. और इस इस्तेमाल से क्या होगा कि वर्ड आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको इंग्लिश लिखने की हैबिट भी हो जाएगी और आपको इंग्लिश बोलने की भी हैबिट हो जाएगी धीरे धीरे. बिकॉज जो आप लिखते हैं दैट थिंग इज़ रनिंग इन योर माइंड, जो आप बोलते हैं दैट थिंग इज़ रनिंग इन योर माइंड. सेम थिंग आप ये 4 वर्ड को वैसे आप कीजिए, अच्छा ही होगा. क्योंकि अगर आप ये 4 वर्ड को ऐसे लेटर राइटिंग में बार बार घुमा के उसी वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली आई वेट यू विल नॉट फॉरगेट दैट वर्ड्स. इट्स माई मीन्स
it's my practical approach, so that's why I'm suggesting you people, because you people are also facing the same problem whatever I was facing before that. क्योंकि in 2019 because of quants I didn't get selected in SSC CGL, so now I'm preparing, I'm giving my best. I will see whatever the Mahadev will do, I will see the result. So whatever the next video will come to you people, I will just inform you by message, email, whatever. Just I will tell you one thing, everyone used to tell like that, like it and subscribe it, क्योंकि भाई बेरोजगारों के लिए क्या बोला जाए अब. यू पीपल आर मच मोर सिंसियर देन मी, आप लोग समझदार खुद हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. एंड यही बोलेंगे कि कोरोना टाइम है, सब अपने घर में सेफ रहें, सब खुशी रहें, भगवान का स्मरण करें. एंड आई विल टेल यू वन थिंग लास्टली, बिकॉज दिस इज़ द कोविड टाइम, एक मैं बात ये बोलूँगा कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें इस ज़माने की, तू खुद को बना इस कदर काबिल कि लोग तमन्ना रखे तुझे पाने की. दैट्स ऑल. एंड कुछ मुझसे गलती मिस्टेक हुआ होगा, आई विल बी जस्ट फॉरगिव मी, एंड जस्ट लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट. नाइस टू टॉक टू यू पीपल.